Hello students, this is the continuation of the previous video of chapter 3 Mughal Empire. Open page number 15. Rana Sangram Singh. Rana Sangram Singh of Mewar was a contemporary of Babur. He is also known as Rana Sanga. He was heroic and adventurous. He won many of the battles. However, he was defeated in the Battle of Khanwa against Babur, and his empire was reduced to nothing. So in the last video, we had discussed regarding Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb. Now further, राणा संग्राम सिंह वो बाबर के कॉन्टेम्प्ररी थे। वो मेवाड़ के थे जो उस सामयिक थे, जो कॉन्टेम्प्ररी समसामयिक उसके साथी थे। वो राणा संगा के नाम से जाने जाते थे। वो वीर और साहसिक थे। उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते थे। राणा संगा बाबर के सामने खानवा के युद्ध में हार गया था और उसका साम्राज्य गिरने लगा। आफ्टर दैट Maharana Pratap was the majestic ruler of Mewar who fought against Akbar of the Mughal Empire. As Akbar attacked Mewar, the Battle of Haldighati took place between Akbar and Maharana Pratap. Akbar was victorious, but Maharana Pratap established his power in the adjoining areas of Udaipur, so the struggle continued. तो महाराणा प्रताप मेवाड़ का एक तेजस्वी शासक था जिन्होंने अकबर के सामने युद्ध किया। जब अकबर ने मेवाड़ पर हमला किया तब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर जीत गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने उदयपुर के आसपास के प्रदेश में अपनी सत्ता स्थापित की और इसीलिए उन्हें संघर्ष चालू रहा। There were several attempts for pacification, but Rana was not ready to leave Chittor. He continued the guerrilla warfare. After the defeat of Haldi Ghati in 1576 AD, Rana Pratap took the capital to Gogunda and continued fighting till the end. Later on, he made Chavand of Dungarpur as his capital. He died at the age of 51. तो दोनों के बीच समझौते के अनेक प्रयत्न हुए, लेकिन राणा चित्तौड़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध चालू रखा। 1576 AD में हल्दी घाटी के युद्ध में हारने के बाद राणा प्रताप अपनी राजधानी गोगुंडा में ले गया और अंतिम घड़ी तक युद्ध करता रहा। बाद में डूंगरपुर के चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। उनकी मृत्यु 51 वर्ष में हुई, 51 years. Now turn your page number 16. वीर दुर्गादास राठौड़. Durgadas Rathod was the son of Aksharang Rathod, the minister of Jaswant Singh, the ruler of Marwar. He is compared to Rana Pratap. He did not accept the dominion of Aurangzeb during his reign. तो दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के शासक जसवंत सिंह के मंत्री अश्करण राठौड़ का पुत्र था। उनकी तुलना राणा प्रताप के साथ ही की गई है। औरंगजेब के समय में उसका आधिपत्य डोमिनियन स्वीकार नहीं किया गया था। छत्रपति शिवाजी was one of the greatest king of India and was the founder of the Maratha Empire. He was born in 1627 AD in Shivneri, Maharashtra. Shivaji, the son of Jijabai and Sahaji, was greatly influenced by his guru Samarth Ramdas and Dadaji Kondev. He conquered more than 40 forts
to expand the great Maratha kingdom from a small estate. He fought with the Mughal Emperor Aurangzeb and Adil Shah of Bijapur Sultanate for a long time and finally achieved victory. तो भारत के ग्रेटेस्ट राजाओं, सबसे बड़े श्रेष्ठ राजाओं में जिसको स्थान मिला है वो है छत्रपति शिवाजी। उसने महाराठा साम्राज्य के स्थापक थे। उनका जन्म 1627 AD में शिवनेरी महाराष्ट्र में हुआ था। माता जीजाबाई और पिता शाहजी के संतान थे। शिवाजी, जिसके जीवन पर उनके गुरु समर्थ रामदास और दादा कोंडेव का प्रभाव था, मराठा राज्य का विस्तार करने के लिए 40 से भी अधिक किले जीत लिए। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब और बीजापुर के साथ लंबे समय तक लड़ाई चालू रखी और अंत में विजयी हुए। आफ्टर हिज डिफीट ही साइंड अ विक्ट्री विद द मुग़ल एम्परर in 1665 AD. Aurangzeb even imprisoned him, but he escaped cleverly and fought back and won. He was coronated in 1674 AD at Rajgarh and rose to prominence as a Hindu emperor. तो 1665 AD में मुग़ल सम्राट के साथ उसकी हार होने से उनके साथ संधि की थी। औरंगज़ेब ने उनको जेल में भी भेज डाला था, लेकिन अपनी होशियारी और चालाकी से वो भाग गए और फिर से उन्होंने युद्ध किया और जीत गए। 1674 AD में उसका राज्याभिषेक हुआ। राजगढ़ और वो हिंदू सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हुए। In addition to being a great conqueror, he was also an efficient administrator and a great organizer. His cabinet was known as Ashtapradhan Mandal. He died in 1680 AD. वो एक बड़े विजेता कॉन्करर होने के बावजूद एक एफिशिएंट कुशल एडमिनिस्ट्रेटर, वहीवटकर्ता और व्यवस्था करने वाला ऑर्गेनाइज़र थे। उनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान मंडल कहते थे। उनकी मृत्यु 1680 AD में हुई थी। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन। The Mughal administration was systematically established by Akbar. In it, the emperor was the center of the rule and head of the council of ministers. He was the supreme commander and judge. A wazir was appointed to coordinate between the emperor and administrator. He was called Diwane-e-Wazir-e-Kul and was also the head of the finance and the revenue system. The head of the army was called Mirbaksh. He recruited the army and its officers. He supervised the intelligence system. The spies of the Mughal Empire were known as Vakya-Navis. There was a department called Mir-e-Saman to look after the personal needs of the emperor. He was also the head of government factories. The head of the judiciary was Qazi. So मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन यानी उसका प्रशासन मुग़ल के द्वारा कैसा था? तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्थित स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। शासक के केंद्र में, सेंटर में बादशाह था और उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। बादशाह जो था वो सर्वोच्च सेनापति और न्यायाधीश था। सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर एंड जज। बादशाह और वहीवट तंत्र के बीच में तालमेल रखने के लिए वज़ीर की नियुक्ति की जाती थी। वो दीवाने वज़ीर कुल कहा जाता था। वो पैसे और रेवेन्यू यानी महसूल व्यवस्था का हेड था। सेना के हेड को मीर बख्श कहते थे, जो सेना की और उनके अधिकारियों की भर्ती, रिक्रूट यानी भर्ती करता था।
वो गुप्तचर तंत्र की देखभाल भी करता था। मुगल साम्राज्य के गुप्तचर स्पाइज यानी जासूस गुप्तचर वाक्यानवीस के नाम से जाने जाते थे। एम्परर की पर्सनल जो ज़रूरियातें थी, अंगत ज़रूरियात का ध्यान रखने के लिए मीर ए सामान नाम का विभाग था जो सरकारी कारखानाओं का हेड था। जुडिशियरी यानी कि न्याय तंत्र के हेड को काजी कहते थे। रेवेन्यू सिस्टम। Akbar introduced a new revenue system in India which was known as Mansabdari system. The revenue rate was 1/3 part of the annual produce. The founder of Akbar's revenue system was Todarmal. Mansabdari system was signed with the army as well as the revenue department. Mansab means Jagir and Mansabdar was considered as the chief of the Jagir. He collected revenue from the Jagir and maintained law and order in the area. तो रेवेन्यू सिस्टम, अकबर ने भारत में एक नई राजस्वी प्रणाली महसूल व्यवस्था रेवेन्यू सिस्टम महसूल व्यवस्था की शुरुआत की, जिसको मनसबदारी व्यवस्था से जाना जाता है। रेवेन्यू का दर जो था वो वार्षिक उत्पादन का 1/3 1/3 हिस्सा था। अकबर की रेवेन्यू सिस्टम का संस्थापक टोडरमल था। मनसबदारी जो सिस्टम थी, पद्धति थी, सेना और रेवेन्यू दोनों के साथ जुड़ी हुई थी। सैनिक यानी दोनों के साथ जुड़ी हुई थी। मनसब का मतलब है जागीर और मनसबदार को जागीर का मुखिया माना जाता था। ये मुखिया जागीर में से रेवेन्यू इकट्ठा करता था और उस इलाके में नियम और कानून बनाए रखता था। For this, he was given army according to the Jagir. He was considered as the chief justice of the area and was transferred at regular intervals. The Mughal Mansabdari system was unique in the world and was the highest paid in the world. तो इस काम के लिए उसको जागीर के हिसाब से सेना दी जाती थी। वो उसके इलाके का मुख्य न्यायाधीश गिना जाता था और नियत समय पर उनका ट्रांसफ़र तबादला होता था। मुग़ल मनसबदारी की प्रणाली दुनिया में अनोखी है और ज़्यादा वेतन भी पाते हैं। नाउ पेज नंबर 70। Culture during the Mughal age. Indian culture flourished during the Mughal period. Hindu and Muslim cultures mingled with each other. It is also known as Ganga Jamuna culture. The Mughals established many forts, palaces, gates, mosques and gardens. तो मुग़ल युग में भारतीय संस्कृति का विकास हुआ था। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति एक दूसरे से मिले हुए थे। उनको गंगा जमुना संस्कृति के नाम से जानते थे। मुग़लों ने कई किले, महलों, दरवाज़े, मस्जिदें और बगीचे की स्थापना की। तो पहला, बाबर सेट अप गार्डन्स एट आगरा एंड लाहौर। बाबर ने आगरा और लाहौर में बगीचे का निर्माण किया। शेरशाह built a tomb at सासाराम and a mosque at दिल्ली। शेरशाह सासाराम में मकबरा और दिल्ली में मस्जिद बनवाई। अकबर built the fort of Agra and made unique construction at Fatehpur Sikri, 66 km from Agra. This include Buland Darwaza, Salim Chisti's Dargah, mosque and Panch Mahal built in the memory of his victory over गुजरात। तो अकबर ने आगरा में किला बंधवाया और आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सिकरी में अनोखा निर्माण किया। उसमें बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती दरगाह, मस्जिद और पंचमहल का समावेश होता है, जो
गुजरात में जो उसकी जीत हुई थी उसकी याद में बनवाए थे। The use of marble increased in construction during the time of जहांगीर। जहांगीर के समय में निर्माण में मार्बल का उपयोग किया जाता था। The time of Shahjahan is considered to be the golden age of architecture of the Mughal Empire. He built the Taj Mahal and the Moti Masjid in Agra as well as the famous Red Fort in Delhi. शाहजहाँ के समय को मुग़ल साम्राज्य का वास्तुकला का सुवर्ण युग माना जाता है। उन्होंने ताजमहल और मोती मस्जिद आगरा में और लाल किला रेड फोर्ट दिल्ली में बनवाए थे। औरंगज़ेब बिल्ट अ टोम ऑफ रबीर उद दौरान, बीबी का मकबरा, which bears a striking resemblance to the Taj Mahal in औरंगाबाद in memory of his wife. औरंगज़ेब ने अपनी बीवी की याद में औरंगाबाद में राबिया उद दौरान का मकबरा बनवाया है जो ताजमहल के जैसा ही है। नेक्स्ट इज पेंटिंग। Mughal paintings were world famous. It highly progressed in the time of Jahangir. The Mughal emperor used to invite the best painters in Delhi. During Akbar's time, there were great painters named Jashwant and Basavan. They painted beautiful pictures in Persian stories, books of translation of Mahabharat and Akbarnama. Jahangir's painter named Mansoor was world famous. Jahangir established a school of paintings. During this period, art of painting progressed in Rajasthan, Gujarat, Punjab, Himachal Pradesh and the southern states. तो मुग़ल चित्रकला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जहांगीर के समय में उसका खूब विकास हुआ। मुग़ल बादशाहों ने श्रेष्ठ चित्रकारों को दिल्ली में आमंत्रित किया। अकबर के समय में जसवंत और बसावन नाम के दो महान चित्रकार थे। उन्होंने फारसी कथाओं, महाभारत और अकबरनामा के किताब का अनुवाद सुंदर चित्र बनाकर किया था। जहांगीर का चित्रकार मंसूर विश्व प्रसिद्ध था। उन्होंने चित्रकला की पाठशाला स्थापित की। उस समय दौरान राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड सदर्न स्टेट दक्षिण राज्यों में चित्रकला का विकास हुआ था। Then literature. The Mughal emperors were the patrons of literature. They were good writers. During that period, extensive literature was created in Persian, Arabic, Hindi and other Indian languages. मुग़ल राजाओं साहित्य के संरक्षक थे। वो अच्छे लेखक थे। उस समय में फ़ारसी, अरबी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में व्यापक साहित्य की रचना की। अब्दुल फजल हैज़ रिटन बायोग्राफी अकबर नेमली Akbarnama. He translated the Mahabharata. A lot of literature based on the life of Lord Krishna was written in Indian language. Eknath, Gnaneshwar and Swami Ramdas composed devotional literature in Marathi. तो अब्दुल फजल ने अकबरनामा नाम की अकबर की आत्मकथा लिखी थी। उसने महाभारत का भी अनुवाद किया था। श्री कृष्ण के जीवन पे आधारित बहुत सारे साहित्य लिटरेचर भारतीय भाषाओं में लिखे गए हैं। एकनाथ, ज्ञानेश्वर और स्वामी रामदास ने मराठी भाषा में भक्ति साहित्य की स्थापना की। म्यूज़िक। अकबर वॉज ए connoisseur of music. The great classical singer Tansen was one of his Navratnas. He created various ragas. अकबर संगीत का विशेषज्ञ था। तानसेन जो एक महान शास्त्रीय गायक था, वो एक अकबर का नवरत्न था। उन्होंने अनेक रागों की रचना की थी। Decline. The Mughal Empire, which
established in 1526 AD, was on the brink of collapse after the death of Aurangzeb in 1707 AD. India was divided into small states in the absence of a powerful ruler. These included the weak rulers of Mughal dynasties, Nizam of Hyderabad, the Nawab of Bengal and Bihar, the Rajput states of Rajasthan, the Marathas, the Sikh state of Punjab, etc. These states used to fight with one another. As a result, they became weak. Under such circumstances, trading companies from Europe started dreaming of establishing rule over India. तो 1526 AD में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वो 1707 में औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद पतन की ओर चली गई। ब्रिंक ऑफ कोलैप्स यानी उसका पतन होने लगा, वो कमज़ोर दुर्बल हो गई। भारत छोटे छोटे राज्यों में बँट गया क्योंकि कोई शक्तिशाली शासक नहीं था, जिसमें मुग़ल वंश के कमज़ोर शासकों जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बंगाल और बिहार के नवाब, राजस्थान के राजपूत राज्य, मराठास और पंजाब के सिख राज्य शामिल थे। ये सब राज्य एक दूसरे से लड़ते रहते थे और उसी के कारण वो कमज़ोर हो गए। उसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप में से जो कंपनियां व्यापार करने आए थे भारत में, वो अपना शासन स्थापित करने के सपने देखने लगे। So students, here we have completed your chapter 3. For homework, write the answers of MCQ, blanks, true or false, and match the column. Pics of rest of the answers I will send you later.